How are you? I hope you all are doing good at your places. Today's topic is Introduction to Python, Objectives of Learning, Python and its features, downloading and installing Python, working in interactive and script mode, data types and variables in Python, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, एस्केप कैरेक्टर्स एंड कमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में आज आप जानने वाले हैं। We have already learned that computers follow steps to perform any task, and when we perform a sequence of steps to solve any problem, it is called an algorithm. Let us now learn about computer languages used to develop programs. To communicate with the computers, we need some special languages which are called computer languages or programming languages. Computer language is used to write computer programs. A computer program is a set of instructions written in a programming language. In this chapter, you will learn the basics of the Python programming language. तो पीछे के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर भी एक कुछ स्टेप्स फॉलो करता है और कुछ स्टेप्स हम भी फॉलो करते हैं ताकि वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे ताकि वो कोई टास्क को परफॉर्म करे, जिसे हमने कहा एल्गोरिथम। अब आपकी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन और उसके बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। Python. Python is a popular high-level general-purpose programming language. It is a simple object-oriented programming language that is especially meant for beginners. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is used to write codes for computer programs. Python is extensively used to develop website, games, program robots, web applications, graphic user interface program, artificial intelligence based applications. तो Python जो है आपकी एक हाई लेवल येट सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए क्रिएट करी गई है और इसमें आप अलग अलग टाइप के कोड्स बनाते हैं जिसको एक्सटेंसिवली यूज करा जाता है वेबसाइट्स, गेम्स, प्रोग्राम रोबोट्स, वेब एप्लीकेशंस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस में। ये 1991 में रिलीज करी गई थी, इसे क्रिएट करा था गीडो वैन रोसम ने। Features of Python. Python is a high-level language. It is a free and open source language. It is an interpreted language as Python programs are executed by an interpreter. Python programs are easy to understand as they have a clearly defined syntax and relatively simple structure. Python is case sensitive. For example, number and number are not same in Python. Python is portable and platform independent, means it can run on various operating systems and hardware platforms. Python has a rich library of predefined functions. Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. Python uses indentation for blocks and nested blocks. तो Python के आपके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट करी जाती है बाय एन इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्राम्स जो होते हैं बिगिनर्स के लिए हैं, हाई लेवल है बट सिंपल है, तो ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। अलग टाइप के सिंटैक्स इसमें डिफाइंड होते हैं विद रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसमें नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव होता है पाइथन, मतलब अगर आपने कैप्स लॉक में नंबर लिखा है और लोअर केस में नंबर लिखा है तो उन दोनों का मतलब वैसे तो सेम होता है, लेकिन पाइथन में इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। पाइथन एक पोर्टेबल है, इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म, यानी कि किसी भी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑपरेट कर सकता है। रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, ऑलरेडी बहुत हाई लेवल डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शंस में अवेलेबल होते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारी पॉपुलर वेब सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशंस बेस्ड हैं, जिसको पाइथन को यूज करके बनाया गया है। पाइथन इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक्स को यूज करता है। तो ये फीचर्स हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। Downloading and installing Python. Python interpreter is free and downloads are available for all major platforms, Windows, Mac OS and Linux, in the form of source and binary. You can download it from the Python website, python.org. Python जो है
पाइथन इंटरप्रेटर फ्री है, यानी कि कुछ पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है ये, जैसे आपका विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे पाइथन की वेबसाइट से python.org. Programming in Python. Python has two basic programming modes. Number one, interactive mode. Second, script mode. तो आपका जो पाइथन होता है उसमें आपकी दो प्रोग्रामिंग्स होती हैं, पहली होती है इंटरैक्टिव और दूसरी होती है स्क्रिप्ट मोड. सबसे पहले है वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड. The interactive mode is the default mode. It is a command line shell which gives immediate result for each command. In interactive mode, we type one command at a time. Python executes the given command and gives the output. तो आपका पहला होता है इंटरैक्टिव मोड, इसमें आप कमांड देते हैं, पाइथन उसे इंटरप्रेट करता है और फाइनली आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट देता है. Use the following steps to start Python and work in interactive mode. Step 1, click on Start button. Step 2, scroll down the list of programs and click on Python 3.10 folder. Step 3, click on idle Python 3.10 64-bit. The main idle window appears. Idle stands for Integrated Development Environment. It is a code editor which helps you to write and execute Python programs in the editor itself. तो अगर आपको पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में और क्लिक करना है पाइथन 3.10 फोल्डर पे. इसके बाद आप क्लिक करेंगे आइडल पाइथन 3.10 64-बिट पे. जो मेन आइडल विंडो है वो अपीयर हो जाएगी. आइडल की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये कोड एडिटर है जो आपको हेल्प करता है लिखने में और एग्जीक्यूट करने में पाइथन प्रोग्राम्स इन द एडिटर ओनली. Components of idle Python: title bar, menu bar, shell prompt. सबसे पहला है title bar. This is the area that displays the name of the application and the document. It also contains command buttons like minimize, maximize, restore and close. Menu bar: the menu bar of Python idle window is similar to the menu bar of other programs. It has various menus such as file, edit, shell, debug, options, window and help. Shell prompt: the shell prompt is denoted by 3 greater than arrows. The shell prompt allows you to enter commands directly into Python and get an instant output by pressing the enter key. Type the commands at the prompt and you will immediately get the results. To work in the interactive mode, we can simply type a Python statement on the prompt directly. As soon as you press enter, the interpreter executes the statements and displays the results as shown in figure. Working in the interactive mode is convenient for testing a single line code for instant execution. But in the interactive mode, we cannot save the statements for future use and we have to retype the statements to run them again. अब आपके आइडल पाइथन के भी कुछ वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार और शेल प्रॉम्प्ट. टाइटल बार आपके जो प्रोग्राम आपकी विंडो ओपन होती है उसके टॉप पे होता है, आपके टाइटल का नाम आपको सजेस्ट करता है ये, जिसमें आपके मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन्स भी होते हैं. फिर मेन्यू बार आता है, जो मेन्यू बार पाइथन आइडल का होता है बाकी सारे प्रोग्राम्स की तरह ही होता है, जिसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, फाइल, एडिट, डीबग, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. फिर आपका शेल प्रॉम्प्ट आता है. शेल प्रॉम्प्ट जो होता है वो 3 ग्रेटर दैन एरो के साइन से डिनोट होता है. शेल प्रॉम्प्ट आपको अलाउ करता है अलग अलग कमांड्स को डायरेक्टली पाइथन में एंटर करने के लिए एंड गेट इंस्टेंट, तुरंत आपको आउटपुट मिलता है बाय प्रेसिंग दी एंटर की. आपको अपने कमांड्स को टाइप करना होता है आपके प्रॉम्प्ट में और आपको इमीडिएटली उसी टाइम रिजल्ट मिल जाता है. अब अगर आपको इंटरैक्टिव मोड में काम करना है तो सिंपली आप पाइथन पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, 3 ग्रेटर देन एरोज पे प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली आप टाइप करेंगे. जैसे ही आप एंटर को प्रेस करते हैं आपके सामने जो इंटरप्रेटर होता है वो आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और आपका रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देता है. अब एक बात इसमें देखने जैसी है कि जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट अगर आपको सिंगल लाइन को टेस्ट करना होता है, बट ये आपकी स्टेटमेंट्स को सेव नहीं करता है. आपको वो स्टेटमेंट को रीराइट करना पड़ेगा अगर आपको दोबारा उस प्रोग्राम को रन करना है. Do you know interactive mode is very useful for testing a code as it displays the errors one by one. तो कोड को टेस्ट करने के लिए आपका ये जो इंटरैक्टिव मोड है पाइथन का, ये आपका बेस्ट सूटेड होता है क्योंकि ये 1 by 1 आपको हर एक लाइन का एरर शो करता है. Working in script mode. In the script mode, we can write a Python program in a file,
save it, and then use the interpreter to execute it. Python scripts are saved as files where file name has extension py. By default, the Python scripts are saved in the Python installation folders. To understand the working of script mode, we have divided the process into 4 parts. Let us discuss about them. अब आगे बढ़ने से पहले जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है प्रोग्राम का, वो आपके फाइल में होता है, सेव आप कर सकते हैं और दोबारा इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं. जो पाइथन स्क्रिप्ट्स होती हैं, दे आर सेव्ड एज फाइल्स, जहां पे आपका फाइल नेम का जो एक्सटेंशन होता है वो py के नाम से होता है. एंड बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो पाइथन फोल्डर, इंस्टॉलेशन फोल्डर में सेव्ड रहती हैं. और अगर आपको अच्छे से समझना है कि स्क्रिप्ट मोड पे किस तरीके से काम किया जाता है, तो उसके लिए आपके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. सबसे पहला है क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ न्यू फाइल. स्टेप 1, ओपन द पाइथन आइडल विंडो. स्टेप 2, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स. Step 3, click on the new file option. A new editor window with a blank file will appear on the screen. तो आपका पहला क्या है, आपको नई फाइल को क्रिएट करना है. सबसे पहले आप पाइथन आइडल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप विंडोज की ओपन करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, उसमें से आपको न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है. एक न्यू एडिटर विंडो आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपका एक ब्लैंक फाइल ऑप्शन या आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी. राइटिंग अ प्रोग्राम. टाइप द प्रोग्राम कोड इन पाइथन विंडो. अब आपका जो भी कोड है वो आप इस पाइथन विंडो पे लिखेंगे. सेविंग पाइथन प्रोग्राम. Follow the steps given below to save a Python program. Step 1, click on the file menu. Step 2, click on the save option. The save as dialog box appears. Step 3, select the desired location to save the file. Step 4, enter the name of the file in the file name box. Step 5, click on save button. The file will be saved by the given name at the selected location. अब आपको आपके Python प्रोग्राम को सेव करना है. तो सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आप सेव ऑप्शन पे जाएंगे. सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. जहां पर भी आपको फाइल को सेव करना है वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे. आप अपनी फाइल का नाम एंटर करेंगे फाइल नेम बॉक्स में. सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल उसी डिजायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगी. रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू रन अ Python program. Step 1, click on the run in the menu bar. Step 2, click on run module option or press F5 key. The program will execute and the output will be shown in the shell window. अब आपका जो प्रोग्राम है उसको आपको चलाना है, रन करना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्लिक करेंगे रन पे, जो कि आपका मेन्यू बार पे होगा. फिर आप रन मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपली आप F5 को भी प्रेस कर सकते हैं. आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आपका शेल विंडो में डिस्प्ले हो जाएगा. Variables in Python. A variable in a program is uniquely identified by a name identifier. Variable in Python refers to an object, an item or element that is stored in the memory. Value of a variable can be a string, example B, global citizen, numeric, example 345, or any combination of alphanumeric characters, CD67. In Python, we can use an assignment statement to create new variables and assign specific values to them. Gender is equals to M, message is equals to keep smiling, price is equals to 987.9. In the above example, the variable message holds string type value and so its content is assigned within double quotes. Can also be within single quotes. Whereas the value of variable price is not enclosed in quotes as it is a numeric value. फिर आपके आती है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपके आइडेंटिफाई करे जाते हैं अलग अलग नाम से, जिन्हें बोलते हैं आइडेंटिफायर. आपके पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं या फिर आइटम को या किसी भी एलिमेंट को जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है. वैल्यू जो होता है वो एक स्ट्रिंग होती है. इसमें आपका सिर्फ अल्फाबेट्स जैसे कि बी, ग्लोबल सिटीजन ऐसे भी आ सकता है, या फिर सिर्फ न्यूमेरिक जैसे कि 347 ये भी आ सकता है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में B6, 345 इस फॉर्मेट में भी प्रेजेंट हो सकता है. एक पाइथन में आपको अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करनी है टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, तो आप अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज को उनके साथ असाइन कर सकते हैं. जैसे कि जेंडर इज इक्वल्स टू M, मैसेज इज इक्वल्स टू कीप स्माइलिंग, प्राइस इज इक्वल्स टू 987.9. अब यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल देखा है, जो वेरिएबल मैसेज है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रहा है. आपके कंटेंट जो असाइन करे गए हैं उसमें डबल कोट्स हैं. डबल कोट्स यानी कि दो आपको इस टाइप के इन्वर्टेड कॉमास दिखेंगे. सिंगल कोट्स यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी आप इन वैल्यूज को डाल सकते हैं.
Follow the rules given below to declare a variable. Number 1, a variable name cannot start with a number. Second, the name of the variable can only begin with the letter A to Z or caps lock A to Z or an underscore. Number 3, all variable names are case sensitive. Number 4, variable name cannot contain punctuation characters like and, percentage, asterisk, etc. अब वेरिएबल्स जो होते हैं आपके पाइथन में उसको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं. पहला है, कोई भी एक वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है. आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, ए से लेकर जी तक. अब चाहे ये लोअर केस में हो या फिर अपर केस में हो या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा. जितने भी वेरिएबल्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर कैपिटल या स्मॉल होगा उसमें दोनों का मतलब अलग अलग होता है, केस सेंसिटिव होते हैं. फिर आपका जो वेरिएबल होता है उसमें कोई ही पंक्चुएशंस नहीं आने चाहिए, जैसे आपका एंड का साइन होता है, डॉलर का साइन होता है, परसेंटेज, ये नहीं आना चाहिए. डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. Variable declaration is implicit in Python, means variables are automatically declared and defined when they are assigned a value the first time. Variables must always be assigned values before they are used in expressions, otherwise it will lead to an error in the program. Wherever a variable name occurs in an expression, the interpreter replaces it with the value of that particular variable. अब आपका वेरिएबल में डेक्लेरेशन इम्प्लिसिट होता है. इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको किसी भी वेरिएबल के साथ असाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेरिएबल है वो असाइन हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है. आपका जो वेरिएबल होता है इट मस्ट बी असाइंड वैल्यूज बिफोर द एक्सप्रेशंस, अदरवाइज वो कोई एरर की तरफ आपको ले जाएगा, कुछ गलती आपकी कर देगा. इसीलिए हमेशा जब भी आपका वेरिएबल नेम एक एक्सप्रेशन वाले फॉर्म में आकर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है वेरिएबल वैल्यू से. Program. Write a Python program to find the area of a rectangle given that its length is 10 units and breadth is 20 units. तो यहाँ पर आपका एक Python program है जहाँ पर आपको एक rectangle की given length और breadth दे रखी है, उसका आपको area निकालना है. Date types in Python. A date type specifies the types of value a variable can contain. For example, a person's name must be stored as a string value, whereas the person's age must be stored as an integer. Date types in Python are: number 1, int integer. It represents a number without a fractional part, that is, no decimal point is used. For example, a is equals to 20, b is equals to 99, c is equals to 151, etc. Float, it represents a number with fractional part, that is, a decimal point is used to separate the integer and fractional parts. For example, x is equals to 50.2, y is equals to 90.75, etc. str, string, it represents a string of characters enclosed within single quotes or double quotes. For example, hello Python 11, etc. अब आपका जो डेटा टाइप होता है उस डेटा टाइप में आपके अलग अलग वेरिएबल आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का नाम आ सकता है जो कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू की तरीके से स्टोर्ड होगा, जिसमें पर्सन की एज होगी जो कि आपकी इंटीजर फॉर्म में होगी. सबसे पहला आपका पाइथन का क्या डेटा टाइप है? इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? इसमें आपकी कोई भी पार्ट जो होता है डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 20, बी इज इक्वल्स टू 9, पूरा एक नंबर है. फिर आपका फ्लोट आता है. फ्लोट में क्या होता है? आपका फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल फॉर्म में आपको गिवन होगा. जैसे यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल्स टू 50.2, y इज इक्वल्स टू 90.75, तो आधा पार्ट जो होता है फ्रैक्शनल होता है. फिर आपका str यानी कि स्ट्रिंग आता है. इसमें आपकी कोट्स के अंदर आपकी चीजें गिवन होंगी. जैसे यहाँ पे गिवन है सिंगल कोट, डबल कोट, किसी में भी आ सकता है ये. जैसे यहाँ पे हेलो पाइथन, हेलो आपका डबल कोट में है, पाइथन आपका सिंगल कोट में है, फिर 11 वापस आपका डबल कोट में है. Input and output function. Python provides two commonly used functions, input and print, for input and output. Sometimes a program needs to interact with the users to get some input data or information from the end user and process it to give the desired output. In Python, we have the input function for taking the user input. The input function prompts the user to enter data. It accepts all user input as string. The user may enter a number or a string, but the input function treats them as strings only. अब आपका जो पाइथन होता है उसमें दो तरीके के फंक्शन होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, और उसको वो इनपुट एंड प्रिंट के फॉर्म में भी आप यूज
कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके प्रोग्राम को इंटरैक्शन की जरूरत होती है उनके यूजर्स के साथ, ताकि कुछ डेटा उनको मिल सके या फिर इंफॉर्मेशन आपके एंड यूजर की तरफ से आपको मिल सके, ताकि वो पाइथन या जो भी प्रोग्राम है वो आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको प्रोसेस कर सके। तो पाइथन में हमारे पास होता है एक इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट, इनपुट्स यूजर से इनपुट लेने के लिए, और दूसरा होता है इनपुट फंक्शन जो प्रॉम्प्ट करता है यूजर को डेटा एंटर करने के लिए। ये हर तरीके की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट। जो यूजर होता है वो नंबर भी एंटर कर सकता है, स्ट्रिंग भी एंटर कर सकता है, लेकिन जो इनपुट फंक्शन होता है वो उसको स्ट्रिंग्स की तरह ही ट्रीट करता है। द सिंटैक्स फॉर इनपुट इज इनपुट ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट prompt angular bracket close round bracket close. Prompt is the string we may like to display on the screen prior to taking the input, and it is optional. When a prompt is specified, first it is displayed on the screen, after which the user can enter data. The input takes exactly what is typed from the keyboard, converts it into a string, and assigns it to the variable and left hand side of the assignment operator is equal to. Entering data for the input function is terminated by pressing the enter key. Example, program to print any string after getting it from user. Example, program to print the sum of two numbers as discussed earlier. The input function converts the entered value into the string, which could only be used to print using print location but could not use for calculation purpose. फिर आपकी आती है सिंटैक्स, आती है आपकी इनपुट के लिए। इनपुट प्रॉम्प्ट, पहले एक राउंड ब्रैकेट आता है, एंगुलर ब्रैकेट आता है, उसके अंदर प्रॉम्प्ट होता है, फिर वो एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज होता है और राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है। जो प्रॉम्प्ट होता है वो स्ट्रिंग होती है जो कि डिस्प्ले करी जाती है स्क्रीन पे इनपुट डालने से पहले, और ये ऑप्शनल होती है, कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं होती है। जैसे ही एक प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई करा जाता है, पहले वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, उसके बाद जो यूजर होता है वो अपना डेटा एंटर कर सकता है। जो इनपुट होता है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टाइप किया जाता है कीबोर्ड से, वो उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में और असाइन कर देता है उसके वेरिएबल के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड के असाइनमेंट ऑपरेटर में प्रेजेंट होता है, इक्वल टू साइन। उसके बाद आप एंटरिंग जो डेटा, आप डेटा जो एंटर कर रहे होते हैं उसको आपको अगर टर्मिनेट करना है, कैंसल आउट करना है, तो सिंपली आप एंटर प्रेस कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, प्रोग्राम टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग आफ्टर गेटिंग इट फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से आप इनपुट लीजिए, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके दो नंबर्स हैं, वो आपको प्रिंट आउट करना है, तो सबसे पहले आपका इनपुट फंक्शन आएगा, वो आपके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपका यूज करा जाएगा प्रिंट यूजिंग प्रिंट फंक्शन से, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। When you run the source code, the sum of 23 and 43 shows 2343 as the given value, gets converted into string using input function, and the plus operator concatenates joins both values. Now, to show calculation between these values, you need to convert the entered string values into integer using int function. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज आपको दो नंबर्स को एड ऑन करना है, कैलकुलेट करना है, तो 23 और 43 आपको 2343 की तरह दिखाई देगा। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन, एंड द प्लस ऑपरेटर कॉन्सेंट्रेट्स, दोनों को जोड़ देता है। जोड़ने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो आपको आपकी वैल्यूज को दिखाएगा। उससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका एंटर्ड स्ट्रिंग्स आपकी इंटीजर वाली वैल्यू में int फंक्शन के थ्रू। यूजिंग int, to work with the values provided by the user, Python provides the int function. When you use int function, the values are converted to integers and are then added as shown below. To work with the values provided by the user, Python provides the int function. When you use int function, the values are converted to integers and are then added as shown below. In this program, when you run the source code, the sum of 23 and 43 shows 66 as the given value converts into integer using int function. So, plus operator performs the addition between entered values. तो int का फंक्शन आप कैसे यूज करते हैं? अगर आपको इस पे काम करना है तो आपकी जो वैल्यूज प्रोवाइडेड करी गई हैं, यूजर ने जो आपको वैल्यूज दी हैं, पाइथन उसको int फंक्शन में प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप यूज करते हैं int फंक्शन, जो आपकी वैल्यूज है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद आपका एडिशन
दिखाया जाता है। तो आपको अगर जो भी वैल्यूज प्रोवाइडर ने दी हैं, यूजर ने दी हैं, पाइथन उसको आईएनटी फंक्शन के साथ प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपका आईएनटी फंक्शन यूज होता है, आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं आईएनटी में, यानी कि इंटीजर्स में। उसके बाद उसको ऐड करा जाता है। तो इस प्रोग्राम में जैसे ही आप इस प्रोग्राम को या सोर्स कोड को रन करेंगे तो आपका जो सम है 23 और 43 का, वो आपको 66 शो होगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू कन्वर्टर्स है उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आईएनटी फंक्शन के थ्रू और प्लस ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद फाइनली आपकी जो एंटर्ड वैल्यूज है उसका एडिशन आपको मिल जाएगा। The print function. The print statement is used to display the output of any command on the screen. It can be used to print the specified messages. For example, print hello world will display hello world. तो यहाँ पर क्या है, आपको कोई भी स्टेटमेंट का वैल्यू जब आपको मिल चुका है उसको आपको प्रिंट करना है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। You can specify multiple values with the print statement. When you use a comma with the print statement, the values will be printed with a space in between. In Python strings, the backslash is an escape character. You can use print statement with multiple escape sequence. For example, backslash t means a tab space and backslash n means new line character. तो आपका जो प्रिंटिंग मेथड है पाइथन में, आप मल्टीपल टाइम्स भी किसी चीज को या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने बीच में कोई कॉमा यूज कर लिया है वैल्यूज के बीच में, तो आपका प्रिंट में भी आपका स्पेस आ जाएगा बीच में। सिमिलरली आपके जो पाइथन स्ट्रिंग्स में अगर बैक स्लैश होगा, इसका मतलब कि एस्केप कैरेक्टर है। जैसे ही आप प्रिंट करना चाहेंगे कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एक सीक्वेंस में, जैसे कि आपका बैक स्लैश टी का मतलब है टैब स्पेस एंड बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन कैरेक्टर। Do you know you can also convert string into decimal value using float function? तो किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप फ्लोट फंक्शन से उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। Do you know an escape sequence is a sequence of characters with special meaning when used inside a string or a character? तो escape sequence जो होता है ये वो sequence of characters होते हैं जिनके special कुछ meanings होते हैं आपके string of characters के बीच में। Critical thinking. Write the output of the following. A, num1, num2 is equals to 2, 6. Num1, num2 is equals to num2, num1 plus 2, print num1, comma num2. B, num1 is equals to 4, num2 is equals to num1 plus 1, num1 is equals to 2, print num1, comma num2. तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। Comments. Comments are used to add a remark or a note in the source code. Comments are not executed by interpreter. They are added with the purpose of making the source code easier for humans to understand. They are used primarily to document the meaning and purpose of source code and its input and output requirements, so that we can remember later how it functions and how to use it. In Python, a comment starts with hash sign. Everything following the hash till the end of that line is treated as a comment, and the interpreter simply ignores it while executing the statement. Example, hash sign variable amount is the total spending on grocery amount is equals to 3400. Hash total marks is sum of marks in all the tests of mathematics. Total marks is equals to test 1 plus test 2 plus final test. तो आपके जो comments होते हैं, किसी भी नोट में सोर्स कोड से पहले अगर आपको कोई नोट या रिमार्क डालना होता है ताकि फ्यूचर में जब आप यूज करें तो एज अ रेफरेंस आप उसको पढ़ पाएं, तब आपका जो ये कमेंट है वो यूज करा जाता है। ये एक इंटरप्रेटर ही एग्जीक्यूट करता है। ये इस पर्पज से एग्जीक्यूट करे जाते हैं ताकि सोर्स कोड को समझना ह्यूमन बीइंग्स के लिए थोड़ा आसान हो जाए, कि सिंपली प्राइमरीली आपके डॉक्यूमेंट में मीनिंग और पर्पस आपके सोर्स कोड का आपको बताते हैं इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, सो दैट बाद में जब आपको याद अगर बाई चांस ना रहे, क्योंकि ह्यूमन्स हैं आप भूल सकते हैं, तो बाद में जब आप उसको देखें तो रेफरेंस के लिए आप उसे पढ़ सकें। जो पाइथन में जब आप कोई भी कमेंट डालते हैं हमेशा वो एक हैश साइन से यूज स्टार्ट होता है, तो कहीं पर भी बीच में अगर हैश साइन आता है तो इंटरप्रेटर समझ जाता है सिंपल एक कमेंट है, वो उसको इग्नोर भी कर सकता है अगर उसे नहीं पढ़ना है तो। जैसे कि हैश variable amount is the total spending on grocery amount is equals to 3400. Hash total marks is sum of marks in all the tests of mathematics. Total marks is equals to test plus 1, test 2 plus final test. Let's revise. Python is a popular high-level programming language. Python is a case-sensitive language. IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. Interactive mode is a command line shell which gives immediate result for each command.
Variables are memory reference points where we store values which can be accessed or changed later. A data type specifies the type of value a variable can contain. The input function takes the user input while a program executes. The print function prints or sends the output to the standard output device. Escape characters are special characters represented by a backslash followed by the character or characters, and they are used for special purposes. Comments enable us to understand the way a program works. तो पाइथन जो है आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बिगिनर्स इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली समझ पाते हैं तो इम्प्लीमेंट भी हो पाता है और मॉडिफिकेशन भी उतनी ही आपकी ईजी हो जाती है. इसमें आपका आइडियल होता है जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. इसमें आपके दो टाइप के मोड होते हैं, इंटरएक्टिव मोड होता है, दूसरा मोड होता है आपका शेल. अलग टाइप के होते हैं, इंटरएक्टिव मोड भी होते हैं, शेल मोड भी होते हैं, जिसमें आपकी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करी जाती हैं आपके कमांड्स को देने के लिए. इसमें आपका इनपुट फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है जो आपकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट आउट भी निकाल देता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.